करिए बुलंद उपरंत बाणी दी विचार नाल जुड़ना करांगे। गज के आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। माज महला पंजवा। लाल गोपाल दयाल रंगीले गहर गंभीर बेअंत गोबिंदे। ऊंचे अथाह बेअंत स्वामी। सिमर सिमर हाँ जीवा जियो। दुख भंजन निधानी अमोले। निर्भौ निर्वैर अथाह अतोले। अकाल मूर्ति आजूनी संभो। मन सिमरत ठंडा थीवा जियो। अकाल मूर्ति आजूनी संभो। मन सिमरत ठंडा थीवा जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पवित्र बचन पंजवें पातशाह शहीदां दे सिरताज छत्र चबर तखत दे मालक हलत पलत के रखियक शहीदां दे सिरताज सतगुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उस परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा की सिफत करते हैं। लड़ीवार शब्द शुरुआत की सी परमेश्वर दे प्राप्ति किमें हो सकती है। फिर पता लग्या परमेश्वर दे प्यारियां नूं मिलो। परमेश्वर दे प्यारियां ने कृपा की जिथों पंजवें पातशाह जी ने शब्द शुरू किया सी मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई। कहते परमेश्वर दे प्यारे मिले ते भाग होआ गुरसंत मिलाया। प्रभ अविनाशी घर में पाया। सेव करी पलचसा न बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो। परमेश्वर दे प्यारियां ने परमेश्वर दे नाम की जानकारी दिती। फिर उस दे नाम दे सहारे सुरत ने चलना किया ते चलदी चलदी एक दिन उस मालक की प्राप्ति हो गई। और फिर पता लग्या ये जीव उहदे हुक्म अंदर चलन लग्या। कहिया करना दिता लैना गरीबां अनाथां तेरा माण। फिर अगे ये भी चल के पता लग्या भी जे विसर गया तो फिर दुखों की शुरुआत हो जानी है। आखां जीवां विसरै मर जाओ। दुख तदे जां विसर जावै भुख व्यापै बहु दिधावै। नाम नाल जुड़ के साडा जीवन सुखी बतीत हो सकता है। वरना परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। बेमुख होए राम ते लगन जन्म जोग। जग जीवन पुरख त्याग कै मान संधि आस। दोऐ भाए बगुचिया गल पई सो जम की फास। इस तरह परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा जो है वो ऐसा है। अज दे शब्द विच पातशाह जी ने उस परमेश्वर की फिर महिमा की। जदों जीव ते कृपा हुई बख्शिश हुई रंग लग्या तो फिर सुरत शब्द नाल जुड़ के परमेश्वर के गीत गाउण लगी। अज का जो शब्द है ये राही
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਰੰਗੀਲੇ। ਲਾਲ, ਲਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਹੈ। ਲਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਲਾਲ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਲਾਲ ਦਾ ਅਰਥ, ਲਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਲਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੈ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਨ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ ਕਾ ਮੂੜੇ, ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਹੇ ਰੇ। ਤੋ ਲਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਰੰਗੀਲੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ, ਲਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ, ਗੋਪਾਲ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਦਇਆਲ ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੋ ਪਲੱਸ ਪਾਲ। ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਪਾਲ ਮਤਲਬ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੰਗ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੈ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖਦਾਈ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਗਭਗ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਆਪਾਂ 9ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਸ 9ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਰੱਖੇ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਸੀ ਓਨੇ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸੁਮਤ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਭਾਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ।
लाल गोपाल दयाल रंगीले, तू मेरा लाल है, अपने लाल रंग विच रंगण वाला, प्रेम दा पक्का रंग चढ़ाउण वाला। हे परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा, गोपाल जीवां नूं पालण वाला, सारी सृष्टि नूं पालण वाला तू है। रंगीले, तेरे रंगां दा कोई अंत नहीं। दयाल, आल, आला, कंध विच आला हुंदा, आल हुंदा मतलब घर, दया दा घर है तू, गरीब नवाज भी कहते हैं। गरीबां नूं नवाजण वाला तू है, तू दयालु कृपालु है, दयाल है। रंगीले, तरह तरह के रंग दिखाउण वाला, जितनी सृष्टि है उन्ने ही उहदे रंग है। प्रीतम दा बचन है ना बाणी च, सभै रंग नारायण जेते मन पावन। ये सारे रंग उस परमेश्वर दे है, जिन्ने भी हो रहे न ये तैनूं चंगे लगने चाहिए। जिस तरह गुरमत विच साडे एक मर्यादा है भी आनंद साहिब का पाठ हरेक थां ते कीता जाता, चाहे मरग होवे ते चाहे ब्याह होवे, को सतनाम श्री। मतलब ये नहीं कि जे मर गए तो उत्थे आनंद साहिब का जाप नहीं करना, असीं उत्थे भी कीता जाता है। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, खुशी गमी हर थां ते, क्योंकि सिख जिहड़ा है ये खुशी गमी तो उच्चा आनंद विच है। सदा दिवाली साधकी आठों पहर आनंद। इस करके ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ रंग सिख नूं चंगे लगदे आ। उदाहरण के तौर पर जिवें भाई भिखारी, बच्चे की शादी रखी है, बड़ियां खुशियां मनाइयां जा रही हैं। भाई साहब जी ब्रह्म ज्ञानी सन, उन्होंने पहला पता लग गया कि विआह तो बाद बच्चे की मौत हो जानी आ। तो इको चढ़दी कला दे, चढ़दी उच्ची अवस्था दे गुरसिख भाई भिखारी जी, जिन्होंने पहला पता लग गया, तो उन्होंने परमेश्वर का वो काम भी ठीक लग्या, कोई उस ते गिला शिकवा नहीं। भावें कि दूजा सिख कहता है तू गुरु अर्जन देव नूं बेनती कर, तेरे बच्चे थोड़ी उम्र लंबी कर देन, तो भाई साहब जी कहन लगे फिर की है, फिर भी मरना ही है। तो इस करके रंग सभे नारायण जेते मन भावन, सारे परमेश्वर दे रंग हैं। उन्होंने रंगीला भी कहते हैं, पता नहीं किन्ने रंग बंदे नूं विखाउंदा। जिवें जिवें बंदे नूं रंग विखाउंदा तिवें तिवें बंदे दा अवस्था बदलदी है। कदे नीवें रंगां च, कदे उच्चे रंगां च मनुख खेडदा। ये सारे रंग परमेश्वर दे, इस करके उन्होंने रंगीला भी कहा जाता। गहर गंभीर तू बड़ा डूंगा है, गहरा जिवें समुद्र गहरे होंदे है। हाले समुद्रां दा अंत पाया जा सकदा, पर परमेश्वर दा अंत नहीं पाया जा सकदा। हे अकाल पुरख, तुसी बड़े ही डूंघे हो। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी सिफत कर रहे हैं। जदों सिख नूं सोझी हुंदी है तां फिर परमेश्वर दे बारे पता लगदा है, ते जिन्हां नूं नहीं पता परमेश्वर दे बारे, वो परमेश्वर दीयां किरतां नूं परमेश्वर मन बैठे। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कहीं भूपा। तेरे किन्ने रंग है, किते कोझा रूप है, किते बड़ी सुंदरता बनाई हुई है। ये सारे तेरे ही रूप है। किते तू राजा बन के बैठा है, किते कंगाल बन के बैठा। किते तू
समाधियां लाई बैठा शिव की तरह, इकट्ठा जिहा होके बैठा, कदे राजे की तरह बड़ा पसार के बैठा, हंकार च बैठा। मैनू समझ नहीं आ रही तेरे किन्ने रंग है। आ मनुख बनाए, इस्त्रियां बनाइया, किसी का चेहरा किसी नाल मिलन नहीं दिता। किन्ने रंग है उस परमेश्वर दे। इस करके उस नूं रंगीला भी कहा जाता है। वो गहर बड़ा डूंगा है, उहदा कोई अंत नहीं पाया। उहदा अंत परे रह गया। सतगुरु कहंदे मन्ने की गत पाई ना जाहे, जिन्हें उन्होंने मन लिया उन्हां दा अंत नहीं पाया जाता। जे को कहे पिछे पछताए, जे कोई अपनी छोटी मत नाल उन्हां दे बारे कुछ कह देवे तो मगरों पता लगता ये तो इदों भी वड्डा जिड्डा मैं कहा, फिर पछताउणा पैंदा। इस करके गहर गंभीर गंभीर भाव पता नहीं तेरे अंदर की कुछ है। जिवें समुंदर के अंदर बेअंत समान है, उस तरह तेरे अंदर पता नहीं की कुछ है। गंभीर विशाल कमलापत कवला नहीं जाना। नारायण की जानकारी लक्ष्मी नूं भी नहीं है, उसकी अर्धंगनी है, उसकी घरवाली है। कहने घरवाली नूं अपने घरवाले दे बारे नहीं पता भी ये किड्डा क वड्डा। भाव माया नूं लक्ष्मी नूं परमेश्वर का पूरा ज्ञान नहीं है। कमला पत कवला नहीं जाना। कमला कहते हैं लक्ष्मी नूं। उसने अपने पति परमेश्वर नूं नहीं पाया, उहदा अंत नहीं पाया। ये माया सारी ओहदी है, पर माया नूं ओहदी जानकारी नहीं है। गहर गंभीर बेअंत तेरा अंत नहीं है। गोबिंदे, गोबिंद का मतलब है बनाउण वाला। गोपाल का मतलब है पालन वाला। गो प्लस बिंद, बिंद पानी तो असी बने हाँ, ते असी कौन आ? सृष्टि। ये जिहड़ी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई आ, इस करके उहदा एक नाम गोबिंद भी पै गया। को सतनाम श्री, इस करके उन्होंने गोबिंद कहते हैं, क्योंकि सृष्टि उस तो बनी आ। वो सृष्टि नूं पालदा भी है, इस करके उन्होंने गोपाल भी कहते हैं। जिन उपाई रंग रवाई बैठा वेखै वख अकेला। जिसने इसनूं पैदा किया है वो इसनूं वेखदा भी है, वो इसनूं जानदा है। इस करके वो बड़ा ही विशाल है। प्रीतम जी सिफत करते परमेश्वर की लिखते हैं, मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान जी, सगल को दे दान। तू काहे डोले प्राणियां, तुद राखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। कर बंदे तू बंदगी, जिचर घट में साहो। जिसने जीवां नूं पैदा किया उही इन्हां नूं पालन पोषण वाला भी है। उसदे बड़े रंग हैं। गहर गंभीर बेअंत गोबिंदे, ऊंच अथाह। कितना ऊंचा है, कोई अंत नहीं। की लिख दिता 10वें प्रीतम जी ने, जिमी तो लैके आसमान तक इतना विशाल है। जिमी आसमान के समस्त बीच एक जोत है। धरती तो लैके आकाश तक, जिथों तक ये दुनिया है उथों तक, एक किनारे तो लैके दूजे किनारे तक। वैसे किनारा है ही नहीं कोई, उसका किनारा उहदा अंत पाया नहीं गया। आद सच कहता, पर आद कदों सी ये नहीं पता। कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं। वक्त न पाया कादियाँ, जे लिखन लेख कुरान। थित वार ना जोगी जानै, रुत माहो ना कोई।
ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਊਚ ਆਥਾਹ ਬੇਅੰਤ, ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਂਧੇ ਗੋਪਾਲ ਕੋਲ ਛੱਡੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਛੱਡ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਂਧਾ ਗੋਪਾਲ, ਆ ਬਈ ਨਾਨਕ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਬਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ। ਜੋ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਟੀ ਮਾਰੂ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪਟਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਘਰ ਵੰਡਣੇ, ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਤਾਂ ਫਾਹੇ ਪੈਣ ਅਪਾਰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਮੇਰੀ ਪਟੀਆ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਧਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਧਰੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਲਿਖੋ ਊੜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਊੜੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਊੜਾ ਤਾਂ ਊੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਆੜਾ ਆੜਾ, ਈੜੀ ਈੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ। ਪਾਂਧਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਂਧਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਊੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਓਅੰਕਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਏਕਾ ਦੂਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਏਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ। ਊੜੇ ਮੂਹਰੇ ਏਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ 3 ਦੇਵਤੇ, ਇਹ ਕਰਿੰਦੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫੱਟੀ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ। ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਫੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਲਿਖਣੇ ਨਾ? ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਮਚਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਓ। ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਪੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਿ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਮਚਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਾਲਸ ਦੀ। ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਮਚਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਤ ਕਾਗਜ਼ ਕਰ ਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਤ ਕਾਗਜ਼ ਕਰ ਸਾਰ, ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਲਮ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
5 दिन भी जपजी साहब नूं प्रेम नाल पढ़ लिया तुहाडी सुरत भी याद हो जाना। तो लिखिया गया ना, प्रेम नूं कलम बना के भाव कलम कर चित लिखारी। ते लिखना की आ, गुर पुछ लिख विचार। फिर सिक्खा गुरु नूं पुछ के लिख अपनी सुरत दी फट्टी ते। गोपाल हैरान हो गया, पांधा भी कमाल हो गई, इहो जिहा तां बच्चा कदे कोई आया ही नहीं मेरे कोल, ये तां बच्चा नहीं है, कोई अवतारी पुरुष लगदा। लिख नाम सालाह लिख, की लिखां दे उत्ते सुरत विच? वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, परमेश्वर दा नाम लिख। लिख नाम सालाह लिख, परमेश्वर दी सिफत लिख। ते नाले भुल ना जाई किते कह दे अंत हो गया, हले शेष नाग तो अंत नहीं पाया गया रब की सिफत का, हजे तक लग्या ही पिया। ਉਹਦੇ 1000 मूँह है, 2000 जीव आ, ते हर वारी नवां नाम लैंदा परमेश्वर का, फिर भी मुकदे नहीं। लिख नाम सालाह लिख, लिख अंत न पारा वार। बाबा पांधा गोपाल जी नूं बाबा कहंदे आ, बाबा जी इत्थे कहंदे बाबा यह लेखा लिख जान, इहो जिहा लेखा सिखना। मैं तो असल में तो सिखाउण आए आ धन गुरु नानक देव जी, पर पांधा जी नूं कहंदे जी सिखाउणा ते आ सिखा सानूं बच्चिआं नूं जिहदा फायदा होवे। तो मैं गल कर रहा सी बेअंत दी। लिख नाम साला लिख ते नाले अखीर ते लिख दे अंत ना पारा वार, हजे मुक्या नहीं चलदा है। केते कहे कह जाए तुम सर अवर न कोई। साडे वर्गे इत्थे बहुत आए, सुनने वाले भी सुनाउण वाले भी, पर हजे सिफत मुक्की नहीं। कहो सतनाम श्री, तेरे वर्गा कोई नहीं है उस परमेश्वर की सिफत करदी। अज पंजवें पातशाह जी जदों मनुख नूं ज्ञान हुंदा है, नाम जपदा है, सोझी आउंदी है, फिर पता लगदा वो की है। लाल गोपाल दयाल रंगीले गहर गंभीर बेअंत गोबिंदे, ये सारे उस दे नाम जिहड़े हन, इन्ने काम है उस दे। ये तो 5-7 है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने जाप साहब दे विच 199 शब्द लिखे हैं, और शुरुआत च लिखे है कि मैं तेरे सारे नाम तो लै नहीं सकता, वैसे तेरे कुछ नाम तेरे कामां दे नाम लैके सिफत करन लगे हाँ। तब सर्ब नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णन करदा हाँ। सुमत मैनू सुमत बख्शो, को सतनाम। कर्म नाम वर्णन सुमत, फिर चल पे। नमस्तंग काले नमस्तंग कृपाले, नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे, नमस्तंग भेखे नमस्तंग लेखे, नमस्तंग काए नमस्तंग जाए। ये मानो एक एक शब्द विच परमेश्वर की पूरी पूरी गल रखी हुई है। जो इहदा विस्तार करांगे जाप साहब का, तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाना। को सतनाम श्री। अकाले तो काल रहत हैं, तेनू मौत नहीं पैंदी, आरंभता तो तू है। नमो सर्ब काले, सारियां दा काल तू है। तू ही दुनिया नू मारन वाला ते पालन वाला बनाउण वाला है। नमो सर्ब पाले, नमो सर्ब करता, नमो सर्ब हरता, देण वाला तू है, लैण वाला तू है। नमो जोग जोगे, जोगियां दे विच जोग साधना तू है। नमो भोग भोगे, गृहस्तियां विच रसां नू भोगण वाला भी तू है। तो इदा करके प्रीतम ने उस बेअंत की बेअंतता अपने जाप साहब विच भी भरी आ। गोबिंदे ओ सृष्टि नू बनाउण वालिया, ओ ची अथाह बेअंत स्वामी। धरती तो आकाश तक, एक किनारे तो दूजे किनारे तक पता नहीं किनारा है कित्थे, बेअंत है। इस करके वो बड़ा विशाल है। प्रीतम जी कहते अथाह उसका अंत नहीं है। हे स्वामी, स्वै दे अंदर आउण वाले आ, भाव तुहाडे सब दे विच है। जो इहदा अर्थ करांगे 100 प्लस आमी, आमी आउण वाला, स्वै स्वै दे विच। सब ने अपने अंदर ही खोजना है, बाहर नहीं। दुनिया अपने आप नूं छड्ड के बाहरों लभदी है। जिवें समान बाहरों मिलदा, रब नूं बाहरों लभदी है, पर बाबा जी कहंदे रब अंदर मिलूगा, बाकी समान बाहर मिलूगा। माया सारी बाहरों मिलूगी, लेकिन परमेश्वर तेरे अंदर है। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। ये जो दुनिया सेहर मेला दस्तगीरी ना है। दुनिया सिर्फ मेला, किसी के हाथ च फड़िया नहीं। कोई आई जाता, कोई जाई जाता। अज मस्या का दिहाड़ा, जिमें
बहुत आउणगे बहुत जाणगे, पर एक मेले की तरह दुनिया तुरी फिरदी है। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए मनुख नूं बैठना पैना। थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। इस करके ਉਹਨੂੰ पाउण वास्ते बैठना पैना, माया पाउण वास्ते भज दौड़ करनी पैनी है। उल्ट है, परमेश्वर नूं पाउण वास्ते रुकना पैना, माया वास्ते चलना पैना सिर ते परमेश्वर पाउण वास्ते सुरत चलाउणी है, शरीर रोकना है। इस करके प्रीतम जी कहते की करा हुण मैं उस स्वैन विचों परमेश्वर नूं पाउण वास्ते सिमर सिमर हों जीवा जियो। बस हुण मैं उसनूं सिमरां ते रहिंदा जीवन सिमर के बतीत करां। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। इदां उस परमेश्वर दा जाप जो सानूं पंज प्यारिਆਂ ने बख्शिश कीता। अगे लिखदे हन, जे तू सिमरन करेंगा फिर होवेगा की। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਵੇਖਦਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ? ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਨਿਧਾਨ ਅਮੋਲੇ। ਨਿਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਪੇਟੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ नाम का खजाना अमोले, जिसका मुल कोई नहीं। इसे करके सानू सतगुर ने दया करके दिता है, मुल तो मिलता नहीं। 1699 की विसाखी ते धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अनोखा कौतक करते हैं। केसगढ़ साहब की पहाड़ी ते स्टेज रची आ, राते रात सारी तैयारी हुई आ, दूजा दिन चढ़िया, संगतां विसाखी के मेले ते पहुंचियां हर साल की तरह। अज अनोखा कौतक किया। श्री साहब कढ़ के म्यान चो कहते एक सिर चाहिदा। दूजी आवाज़ मारी, सिखो सुनिया नहीं, मेरी तलवार एक सिर मंगदी आ। भाई दया राम जी हाजिर होए। कित्थों आया? भाई जी लाहौर तो। नाम की है? दया राम। लाहौर च दया आ गई, आ जा आ जा। बाहों फड़िया, स्टेज ते लै गए, तलवार चली, सिर झटक दिता। कहंदे एक होर चाहिदा। इउं वारी वारी पातशाह ने सिर मंगे ते सिखां ने उठ के सीस हाजिर कीते ते 5 सिखां दे सिर कट दिते। और ये 3 सिरां दे कटदे कटदे बहुत सारे लोग दूर जा बैठे भी ये गुरु साहब नूं की हो गया, तो आपदे सिखां नूं वड्ढण लग पे। फिर प्रीतम ने उस स्टेज ते बैठ करके बाटे दे भी सबला सुंदर जल पा करके खंडा फेरना शुरू किया। कुछ उहदे उपर मंत्र बाणी पढ़ रहे हैं अपनी। भाव वो बाणी ये 5 बाणियां सी नितने वालियां, सानूं बाद च पता लगियां। वो बाणियां पढ़ियां उन्होंने। बाणियां पढ़न तो बाद कहंदे उन्हां धड़ां दे नाल चक के एक एक सिर रखदे आ, पर हुण ये नहीं पता भी किहदा सिर किहदे धड़ नाल टेक गया। धड़ की निशानी सिर कर की है, नहीं धड़ की कोई पछाण नहीं किहदा धड़ है। कोई सतनाम सी। चलो धड़ां दे नाल सिर रखे ते फिर कल्ले कल्ले मूँह दे विच जल दा चूला पा के कहंदे बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ते कहंदे ये घटना उत्थे अबुल तरानी औरंगजेब दा जसूस छड्डिया होया सीगा। एक्टिविटी रोज़ वेखदा सी गुरु घर च की हुंदा है। अज भी देखदे आ, सरकारां दे जसूस आउंदे आ, तो उत्थे भी छड्डे होया। वो वेखदा है कि आह की घटना घटी, अज जिउंदा करता बंदा हाथी अपने सामने कट के, कमाल हो गई। और वो फिर जसूसी की चिट्ठी लिखदा औरंगजेब नूं, सारी कहानी लिखदा है। लिखण तो बाद लिखदा है कि फिर उन्होंने कि बिना कुंडियां दी कड़ाही भाव सरबलोह दा बाटा लिया और उहदे विच कुछ समा उन्होंने खंडा चलाया, कुछ बाणियां पढ़ियां, कुछ कलमे पढ़े, पता नहीं की पढ़े। तो फिर वो जल उन्हां कट्टे हुए सिरां दे मूँह विच पा के कहंदे बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ते वो सारे दोबारा सुरजीत कर ले। ये मेरी आखिरी जसूसी है। अज तो मैं भी गुरु गोबिंद सिंह दा सिख बन गया। मैनू भी अज लगदा है वो आबे हजात है, जिन्हों असीं मुसलमान आबे हजात कहने आ ना, मैनू लगदा वो है। तो मैं तो आप ले लिया
तो सतगुरां दे कोल जाके जद इन्हें बेनती की जी मैनू भी दिओ, कहंदे आ जा, सतगुर सब दा है। तो उसका नाम अजमेर सिंह रखिया गया। को सतनाम सिंह आखिरी उसकी यह छोटी जी कहानी लिखी हुई किताबों चों मिलती है आपां नूं। खैर सतगुरु गोबिंद सिंह जी उन्होंने छका करके अमृत सुरजीत करके सामने लिया के फिर सारे नेड़े आ गए। कहते जी आ की सानू भी छकाओ, सानू इन्हां वर्गे बनाओ। कहते भी इन्हां वर्गे तो इहो ही आ, ये मेरे प्यारे आ, तुसीं मेरे सचियारे बनो, तुसीं इन्हां तो अमृत छको। तो आप भी कहते लो भी दया सिंह हुण तुसीं दया राम नहीं सारे सिंह हो गए, सारे तखालस कट के सब दे नाल सिंह ला दिता। को सतनाम श्री कहते मैनू भी हुण गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बनाओ। तो दया सिंह जी पहलां तो झफ गए सारे पंजे सिंह, कहते महाराज तुसीं तां खुद परमेश्वर हो, असीं तां नहीं नहीं, तुहाडे ते मेरे च हुण कोई फर्क नहीं, मैनू भी तुसीं उस तरह अमृत छकाओ जिवें मैथों छकिया। तो उस वेले गुरु प्यारो दया सिंह होरी कहन लगे फिर असीं तां सिर दे के लिया। ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी कहते सिंघो इस अमर का मुल एक सिर भी नहीं है। मैं इथों मुल की गल कर लग्या सीगा, अमोले अथाह अमोले, उसका मुल कोई नहीं है कहते। तो दया सिंह जी कहते असीं तां सिर दे के लिया, तुसीं की दिओगे? कहते सिखो इस अमर का मुल एक सिर नहीं है, तुहाडे कोल सीगा ही एक, दिंदे भी कित्थों, पर मैं इस अमर के बदले सरवंस वार दूंगा, मैं जितना मेरा परिवार है मैं ला दूंगा, मैनू भी गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बनाओ। फिर आप जी ने भी उन्होंने पंजा सिंघां तो अमृत छक के अपना नाम गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह किया। खैर मनोवृत्तियां उत्थे रखीए, मैं परमेश्वर दे कामां दी मुल दी गल करदा तो वह मुल कोई नहीं है। जपजी साहिब च भी लिखे अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारी है अमुल भंडार, अमुल आवे अमुल लै जाहे, अमुल भाए अमुला समाहे। वो बड़ा अमोलक है। निर्भौ निर्वैर अथाह अतोले, वो डरदा नहीं है। तो जिहड़े डरदे नहीं दुनिया विच दूजिआं नूं डराउंदे जरूर आ। को सतनाम सी, कई लोग अपने तो छोटिਆਂ ਨੂੰ डराउंदे है, पर परमेश्वर का ऐसा सुभाव नहीं, वो डरदा भी नहीं ते वो डराउंदा भी नहीं। बिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हों संभल थकी जी ओ कदे ना बोलै कौरा। कौड़ा बोल ना जानै पूर्ण भगवान है, औगुण को ना चितारे, ऐसा है वो परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा। निर्भौ तू निर्भौ है, तू निर्वैर है, अथाह तेरा कोई था नहीं है। हे अतोले परमेश्वर तैनू कौन तोल सकता है। हुण कंडे नूं कौन तोले, कंडा तो बहुत कुछ तोलदा है, कदे कंडा भी तोल के देखिया किसी ने? आपे कंडा तोल तराजी, आपे तोलनहारा, आपे देखे आपे बूझे, आपे है बनजारा। अंधला नी जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहिंदा क्यों कर मूड़ा पावै। वो परमेश्वर सानू सब नू जजमेंट करदा है, पर ओहदी जजमेंट किसी नू नहीं आएगी। वो अतोला है, उन्होंने तोलिया मिनिया जांचिया मापिया नहीं जा सकता किसी तरह भी। प्रीतम जी कहते अतोले अकाल मूरत, तू काल तो बाहर है, तेरा जिहड़ा स्वरूप है इस ते कदे काल नहीं पैंदा, ये ते कदे मौत नहीं पैंदी। प्रीतम जी कहते हे परमेश्वर अतोले तैनों तोलिया नहीं जा सकता, तू मौत तो बाहर है, काल तो बाहर है, अकाल मूर्त तेरा स्वरूप है जिहड़ा उते मौत नहीं पैंदी। प्रीतम का बचन है राग मारू दे विच, अरबद नरबद धुंधु कारा, धरन न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज, सुन समाध लगाएंदा कल्ला ही बैठा सीगा। अपने आपे विच मिक्स होया ते एक दिन सलाह बनी मेरे वर्गे होर भी होण। जद सलाह बनी फुरना बनिया, कहना हो जा, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ, दुनिया बननी शुरू हो गई। आप सारे दरिया, अब पानी तो बने ना,
ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦਰਿਆ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਆਜੂਨੀ। ਅਸੀਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਯਾਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਯਾਰ ਪਾਤ ਨਾਹਿਨ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਯਾਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ। ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਚਲ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਣਿਆ ਤੋਲਿਆ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ, ਅਸੀਂ ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜੈ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੈਣ ਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਜੁਲਾਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਕੇਵਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਛੱਜੂ ਮਹਿਰੇ ਚੋਂ ਬੁਲਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਕਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਤੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਗੀਤਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪੰਡਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਗਰ 'ਚ ਗਿਆ। ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੂੰਗਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਛੱਜੂ ਮਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਊਂਗਾ, ਕੰਮ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਛੱਜੂ ਮਹਿਰਾ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹਿੰਗੀ ਰੱਖ ਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਹਿੰਗੀ ਨਾਲ। ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਿਆਂਦਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਹਿ ਜਾ। ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਜੋ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਨਗਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਜੂ ਮਹਿਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਛੱਜੂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਾ ਦੇਖਾ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਡਤ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਛੱਜੂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ 72 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਜਮਾ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਤੂੰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੰਭਉ, ਸੰਭਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਸਹਿਪਾਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸੰਭੌਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਭਉ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ
तू जिथे मर्जी बस सकदा, जिथों मर्जी बोल सकदा, तैनू माँ के राहें पेट राही जम्मण की लोड़ नहीं है। तू डायरैक्ट सीधा आके प्रवेश करदा बने बनाए शरीरां विच। पर जिहड़ा शरीर तैनू भा जावे, प्रीतम जी अगे कहंदे मालका तू ऐसा है, मन सिमरत ठंडा थीवा जीओ। हुण मैं तैनू सिमर सिमर के शांति फील करदा, मेरा मन ठंडा हो गया, शांति आ गई आ। सदा संगी हर रंग गोपाला, हे सृष्टि नूं पालन वाले आ, दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे, सदांग संगे अभंगंग बभूते। तू सारियां दे नाल हमेशा है। कीड़ी तो हाथी तक उन्होंने लभण वास्ते किधरे जाण की लोड़ नहीं, जिथे बैठे हो उत्थे बह जाओ तो उत्थे बैठ के सिमरन शुरू कर दो, उत्थे प्रगट हो जाऊगा। तू हरेक दे नाल हर वेले है। कायो देवा कायो देवल, कायो जंगम जाति, काया धूप दीप नहीं बेदा। भगत पीपा जी काया पूजो पाती, काया बहु खंड खोजते नवनिध पाई। ना किछ आए वो ना किछ राए गो, राम की दुहाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। पीपा प्रणवै परम तत्त है, सतगुरु होए लिखावे। रब नूं लभण वास्ते जाण दी लोड़ नहीं, रब नूं लभण वास्ते खड़न दी लोड़ है, बैठण दी लोड़ है, भज्जण दी लोड़ नहीं। हाँ माया भालनी है फिर भजो, माया भजाउंदी है। रब तां कहंदा रुक थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। प्रीतम जी कहने सदा संगी हर रंग गोपाला, ऊच नीच करे प्रतिपाला। तू सारियां नूं पालण वाला है, छोटियां नूं वड्डियां नूं। तेरी निगाह तो कोई भी बाहर नहीं। घर दे विच 4 बच्चे पैदा हो गए, एक बच्चा खराब निकल गया, बेकार निकल गया, पर माँ तो उन्होंने भी हथ ने उड़ीकदी है भी हजे आया नहीं गा, रोटी खा लैंदा। कोई सतनाम, ऐसा ही परमेश्वर है। एक बच्चा बेकार निकल गया, नशा च पै गया, पर माँ नूं पुछ के देखो उहदे हिरदे दा, उहदे पेट दा, वो भी मास है टुकड़ा उहदा, उहनूं भी उड़ीकदी है। भावें को अपने कर्मा करके गलत रस्ते पै गया होना, पर माँ वास्ते वो भी उहदा बच्चा है। इस तरह परमेश्वर वास्ते कोई जात पात नहीं, सारे उहदे बच्चे। हाँ एक पिता एक सके हम बारक। मेरे प्रीतम जी कहते आओ ऊच नीच करे प्रतिपाला, वो सारियां नूं पालदा है। नाम रसायन मन त्रिपतायन, ओदा नाम एक रसायन है। रसायन की हुंदा है? आ देसी दवाइयां बनाउंदे ने, और रसायन हुंदी है उन्हां कोले। ਉਹ देसी दवाई खाण तो बाद अनेकों तरह दी अंदरों बीमारियां हटदियां, पर जे तू नाम खा ले मन तृप्त आन, तेरियां मन दियां भुखां भी खत्म हो जाणगियां। तृप्त भई सच भोजन खाया, मन तां रसना नाम ते आया। और सैना नाल देसी दवाइयां बनाउंदे है, पर बाबे नानक ने नाम रसायन बना दिती है। नाम रसायन मन तृप्तायन, गुरमुख अमृत पीवा जियो। गुरु अर्जन देव जी कहने आओ गुरु वाले बन के इस नाम के रस नूं पीए। देसी दवाइयां विच रस कढ़ कढ़ के पाउंदे आ, अर कढ़दे आ वस्तुआं दे, देसी चीज़ां दे, जड़ियां बूटियां दे, फिर एक दवाई बन जाती है। ते नाम जपांगे, इहने भी एक रस कढ़ना है। किणका एक जे जीव सावै, ताकि महिमा गणी ना आवे। उन्हें ऐसा बदलाव अंदर लियाउणा मनुख दे, पता नहीं उहदे अंदरों फिर की कुछ निकले। कहो सतनाम श्री। ऐसी नाम की रसायन की यह कणी है। गुरमुख अमृत पीवा जियो, आओ गुरु वाले बन के, गुरमुख बन के इस अमृत की बूंद नूं पीए। दुख सुख प्यारे तुद ते आई, सुख विच शुक्रिया, दुख विच सिमरन, दुख विच अरदास, ते हर वेले सिमरन जे करिए। कबीर साहब जी कहते सुख में दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोय। जे सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। प्रीतम जी कहते दुख सुख प्यारे तुद ते आई, मैं हमेशा तैनू सिमरदा हाँ। यह सुमत गुरु ते पाई, ये मैनू गुरु कोलों पता लगे है। पंजवें पातशाह जी गल कित्थों चली सी, पहला पिछों यह शब्द 9वां शब्द आ गया। चली सी मेरा मन लोचा गुरदर्शन ताई, बिलप करे चातरक की न्याई। इथों लड़ी चली सी नाम की महिमा की। तो 9वें शब्द ते आके पातशाह हुण उस परमेश्वर नाल जुड़ चुके, एक मिक हो गए। हुण उहदी सिफत करके सानू जोड़दे आ, सानू दसदे आ की कहने
दुख सुख प्यारे तुद ते आई, ए सुमत गुरु ते पाई। नानकी तर तू है ठाकुर, धर हुंदा आधार आसरा। पंजवें प्रीतम आखिरी बचन लिखते हैं, तू इस नानक दा आसरा है, आधार है। नानकी तर तू है ठाकुर, हर रंग पार परीवा जियो। तेरे लाल रंग नूं लैके मैं संसार समुंदर चों पार हो जावांगा, इसे करके मैं दुख सुख हर वेले तैनूं सिमरदा हाँ। ये है उस परमेश्वर की सिफत के कुछ बचन जो पातशाह जी ने बख्शिश किए। लाल गोपाल दयाल रंगीले, गहर गंभीर बेअंत गोबिंदे, ऊँची अथाह बेअंत स्वामी। सिमर सिमर हों जीवा जियो। अगला शब्द भी इसे विषय ते है, सानू समझाते हुए लिखते हैं, माज महला पंजवा, धन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया। परमेश्वर की सिफत करने तो बाद फिर गुरु की भी याद आती है भी यार वो किहड़ा समा सीगा जदों किसी रब के प्यारे ने मैनू ये चेट कलाई, को सतनाम श्री, वो भी समा सी कोई। धन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया, सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया। धन मूठ चस्से पल घड़ियाँ, धन सो ओए संजोगा जियो। वो समय की गल आप कल के दीवाना में सरवण करांगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हाजरियाँ लवाइयाँ। विचारा इत्थे रोकते हैं, बोलदियां ने का अखर बाद घट हो जाते। सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। बुलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु।